Actually, I am not visible to and you are not to me, but you know that through the video we are making the communication with each other. Okay guys. So almost I told you that from the first flight our almost whole course is completed. Now little bit grammar part is remaining and supplementary 2 chapters are remaining, that is 6th one and 7th. So we will complete it soon. Today I am going to teach you supplementary chapter 6 and the name of the chapter is The Making of a Scientist. It is written by Robert W. Peterson. So you know that scientist or any profession you can consider that it is the person is not automatically getting all these skills. They are inbuilt in that person. Suppose some persons are like behaving like from the childhood only they are behaving like this. Their observation power is very we can say that powerful, and they are observing the thing from the minute point of view. Suppose any person want to be actor, then he is having that properties. Means that I told you that in my previous lectures also that every person has having the inner qualities, and that qualities make that person special. And that is why I am always saying to you that we are the unique numbers, that like us God has not made to another. Even the two siblings are not same, isn't it? So here the story we are learning about the person Richard Albright. Okay, so he wanted to be a scientist. So from his childhood only, how his observation was, what the inventions and the discoveries he had made. So let's see about the book. So actually students, you have to read from the textbook one time because this is the supplementary lesson. I am teaching this lesson from the book, camp book. So here, chapter 6, the name of the chapter is Making of a Scientist. It is written by Robert W. Peterson. I am always emphasizing over the writer because guys, in introduction part you have to write this also. So here, before writing, the author has given some description. Let's see. Richard Albright has received the Cyril Squirrel Award and the what it is? Yes, and the Scaring Flow Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Means what? Richard, from the childhood onwards, he was attracted towards the butterflies, and the study of the butterflies attracted him towards the world of science. And so, here we have to find out the answers of this question. First one is, how did a book become a turning point in Richard Albright's life, and how did his mother help him? So let's see what is given here. So here, as I told you that at the age of 22, he discovered how cells work with his college roommate James R. Wong. Whenever Richard was 22 years of age, with his roommate named James R. Wong, he discovered about how the cells work, and his new theory on how cells work in butterflies was explained in the article in the Proceedings of the National Academy of Science. And further, he had made the detailed explanation about how the cells works in butterflies in his book or in the article, the Proceedings of the New Theory, National Academy of Science. This scientific journal had for the first time published the work of college students, and this is the first journal that journal was publishing the inventions made by the college students of their university. So in that article, Richard Albright's article came. It is the study all over about the butterflies. Then what happens? See, this is the scientific journal actually, and it is published for the college students only. Just like a batter in the game of baseball scores a home run after running safely around the field. Means they given the example. You know, in baseball the home run has its own importance. So whatever the inventions made by the college students, so the journal is the home run for them. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे कि जब ये रिचर्ड 22 ईयर्स ओल्ड था,
उसने अपने क्लासमेट के साथ एक इन्वेंशन किया कि हाउ द सेल्स वर्क। फर्दर उसने ऐसा इन्वेंट किया कि सेल्स बटरफ्लाई के अंदर कैसे वर्क करती है। तो उसका जो भी ये इन्वेंशन था वो एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ और वो आर्टिकल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि हाउ द सेल्स वर्क्स इन बटरफ्लाइज। सो दिस इज जस्ट द वी कैन से दैट बिगिनिंग ऑफ हिज इन्वेंशन। वो एक बिगिनिंग थी, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द होम रन। तुमको पता है बेसबॉल के अंदर होम रन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो उनके लिए ये जो जर्नल, साइंटिफिक जर्नल उनका प्रिंट हुआ था, ये उनके लिए होम रन की तरह था। मीन जस्ट देयर बिगिनिंग इट इज ऑनर्ड बाय द दैट समवन और दैट समथिंग दैट इज आर्टिकल। फिर आगे देखो, आगे दिया है रिचर्ड एब्राइट ऑल्सो क्रॉस्ड ऑल हर्डल्स एंड डिड अ सक्सेसफुल रिसर्च इन द इंसेक्ट वर्क स्टडी विच ही हैड स्टार्टेड इन हिज चाइल्डहुड। सी गाइस, आई टोल्ड इन द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर ओनली, मैंने तुमको पहले ही बोला कि हर एक बच्चे के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज बचपन से ही होती है। वी कांट कंपेयर। इसीलिए हर बार टीचर भी बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स भी किसी के बोलते हैं कि कंपेयर मत करो। कंपेरिजन मेक्स द पर्सन वीक। कंपेरिजन की वजह से पर्सन वीक होता है। सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ है। सब लोग पढ़ाई में होशियार नहीं होते हैं, मैं हर बार यही बोलती हूँ। किसी के डांस करने का बहुत ही अच्छा उसके पास स्किल होता है, कोई स्पीच बहुत अच्छी तरह से देता है, कोई सॉन्ग बहुत अच्छी तरह से गाता है, कोई कॉमेडी बहुत अच्छी तरह से करता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे तुमको मैंने वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का चैप्टर भी था, शायद तुम लोगों को था पढ़ाया हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एसएस इंग्लिश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ इंटरेस्ट था तो फिजिक्स में। ओके, उसको काफ़ी सारे लोगों से मीन्स टीचर्स ने उसका हमेशा टीचर्स के साथ आर्गूमेंट होता था, बट फाइनली ही बिकेम अ साइंटिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल ले तो एडिसन ले लो। एडिसन जब बचपन में था तो उसके टीचर ने मना कर दिया था कि ये बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं, तो वो साइंटिस्ट बना। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है सबके अंदर कि उनको वो ग्रेट बनाती है, अगर वो अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करे तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि ये जो रिचर्ड था, ही स्टार्टेड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। सिंस हिज चाइल्डहुड ही स्टार्टेड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का स्टडी करने का इसने स्टार्ट किया रिचर्ड ने। कब? जब वो छोटा था, तब जाके उसको सक्सेस मिला। व्हेनेवर ही विल बी ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 22 ईयर्स का हुआ, यानी लगभग अपने सोचे तो 10-15 साल तक उसने इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज ढूंढे, रिसर्च किया। रिसर्च वर्क करने के बाद उसको डीपली और विद कॉन्फिडेंस के साथ पता चला कि हाउ द सेल्स वर्क्स इन बटरफ्लाइज। बस यही है, किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें पाना है, वी हैव टू डू अ मोर हार्ड वर्क बिहाइंड इट। वी हैव टू फोकस ओनली दैट थिंग। हाँ, मीन्स इट इज़ वेरी कॉमन दैट ऑल द हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स कम्स इन योर पाथ और इन योर वे। यू हैव टू क्रॉस दैट ऑल द हर्डल्स। मुसीबतें आती है और ऐसा कहा जाता है कि मुसीबतें ही हमको, प्रॉब्लम्स हमको सिखाते हैं कि हम लोग लाइफ में आगे कैसे बढ़े। ये सोचने वाले के ऊपर जाता है कि वो हर एक मुसीबत को किस तरह से हैंडल करें। अगर हम लोग हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डिफिकल्टी को पॉजिटिवली ले, हर एक अपने ऐसा समझे कि ये मेरा एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, हमें हमेशा हर एक डिफिकल्टी को हम लोग वेलकम करेंगे और उसको हर बार क्रॉस करेंगे। बस यही होता है साइंटिस्ट का नेचर, जो रिचर्ड का भी था। फिर क्या हुआ देखो, एब्राइट एंड ओनली चाइल्ड लिव्ड इन पेंसिल्वेनिया विथ हिज मदर। पेंसिल्वेनिया is the name of the city. His father died when he was in 3rd grade. So he was everything for his mother. He couldn't play football or baseball as he was quite alone, so he collected things. उसको ऐसे शौक नहीं था खेलने का जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे, कोई फुटबॉल कोई बेसबॉल, बट ही वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंड सर्चिंग एंड मेकिंग द ऑब्जर्वेशन. दैट इज वाई ही वॉज जस्ट लिविंग इन होम एंड ही कलेक्टेड द थिंग्स. दैट वॉज हिज हॉबी. तो उसका हॉबी था, वो क्या करता था, चीज़ों को कलेक्ट करता था, वो उसका हॉबी था. ही कलेक्टेड, अभी वो देखो क्या कलेक्ट करता था, ही कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. उसकी वो हॉबी थी बचपन में कि रॉक्स, फॉसिल्स, जो भी पुरानी चीज़ें मिले, कॉइन्स, वो कलेक्ट करना. ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज व्हेन ही वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड. जब वो 2nd स्टैंडर्ड में था, तुम लोग देखते हो छोटे बच्चों को बहुत ही शौक होता है, वो जार के अंदर बटरफ्लाई को बंद करके रखते हैं. उनको ये पता नहीं होता है कि बटरफ्लाई मर जाएगा. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है तो वो जार के ऊपर होल करके भी बटरफ्लाई को रखते हैं. मीन्स इट इज जस्ट देयर हॉबी, वी कैन से. तो उनका वो हॉबी था, तो इसका भी हॉबी था. जब ये 2nd स्टैंडर्ड में था तब वो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का उसको हॉबी लगा. एब्राइट्स मदर लव्ड हिम वेरी मच.
and spent a lot of time with him. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes and cameras. She was his best friend. उसकी मॉम, अभी पापा तो थे नहीं, उसकी मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बिकॉज शी वॉज लव हिम मच. तुमको पता है हर एक मम्मी को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है और हर एक बच्चे को अपनी मॉम अच्छी लगती है. तो सेम यही है, उसने उसके जो भी हॉबीज़ थे उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, हमेशा उसको मोटिवेट किया. वो उसको ट्रिप्स के ऊपर लेके जाती थी, उसके लिए वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फिर कैमरा, ऐसी सारी चीज़ें लेके देती थी. जब क्योंकि उसने उसके ऊपर फोकस किया, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है. उनको पता होगा शायद पेरेंट्स यही भी भूल करते हैं, इसलिए उनके बच्चे शायद आगे नहीं हैं. बच्चे को क्या पसंद है बस उसके ऊपर अगर तुम लोग उसको सपोर्ट करोगे ना, वो बच्चा कहाँ से कहाँ जाएगा. क्योंकि लाइफ में अगर वो कभी फेल भी हो जाता है ना बेटा, तो उसको एटलीस्ट ऐसा पछतावा नहीं होगा कि मेरी मम्मी की वजह से या मेरे पापा की वजह से मैं फेल हुआ. वो अपने आप को बोलेगा कि मेरी वजह से मैं फेल हुआ, और वो कुछ ज़्यादा सीखेगा उसमें से. इसीलिए हर बार तुम लोगों ने अगर कभी ऐसे ये मोटिवेशन के सेमिनार्स अटेंड किए हो तो उसमें पढ़ाया जाता है. मैंने अटेंड किए हुए, मेरे बेटे ने भी अटेंड किए हुए. उसमें वो लोग वही फोकस करते हैं कि बच्चे को, या जो भी तुम लोग सोचते हो पॉजिटिवली लो, बच्चा जो उसका अंदर स्किल है उसके ऊपर फोकस करो, ना कि पढ़ाई. सबके लिए पढ़ाई पॉसिबल नहीं है. तुमने 3 इडियट्स में भी देखा हुआ है कि आमिर खान ने यही बताया हुआ है कि किस तरह से, जैसे वो बोलता है कि सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग के कंपटीशन में आया होता तो उसका नंबर कहाँ होता. लता मंगेशकर अगर क्रिकेट के टीम में या क्रिकेट स्पोर्ट्स में आई होती तो उसका नंबर कहाँ होता. मीन्स वॉट, हर एक इंसान अपने अपने फील्ड में माहिर है, उसको उसमें रहने दो ना. समझ में आ रहा है. तो बस अभी देखो तुम लोग यहाँ पे भी देख रहे हो रिचर्ड एवरेट के बारे में. उसकी मॉम ने उसकी हॉबीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया. उसको कभी उसकी मॉम ने उसको डांटा नहीं कि ये गंदी चीज़ें क्यों कलेक्ट कर रहा है, बटरफ्लाई को क्यों अंदर रख रहा है. उसको अलग तरह से समझाया ताकि वो बटरफ्लाई को भी नुकसान ना हो और बटरफ्लाई वाले उसके पास रहे. यानी ऐसे अगर सारे पेरेंट्स बन जाए तो सोचो हमारे इंडिया के बच्चे कैसे होंगे. यही फर्क होता है इंडियंस का और फॉरेनर्स का. क्योंकि फॉरेनर्स जो बच्चे होते हैं उनका ब्रॉटअप जो है स्टूडेंट्स, वो अलग तरह से किया जाता है. उनको बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है. वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं. थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनको अपने डिसीजन खुद लेने को बोलते हैं, जिसकी वजह से हैबिट होती है. इंडिया की अगर बात करें तो बच्चा पूरी तरह से मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होता है. मम्मी पापा उसके लिए प्रॉपर्टी बना के रखते हैं, मम्मी पापा उसको जो बोलेंगे वही उसको करने का, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिपेंडेंट बनता जाता है, डरपोक बनता जाता है. और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बचपन से ही, फ्री नहीं बोलूँगी मैं, बट बचपन से ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फील करवाते हैं कि भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे ये करना है. तो वो बच्चा देखो अलग ही होगा. ये डिफरेंस होता है. तो अगर सारे पेरेंट्स इस तरह से सोचे, जैसे भी रिचर्ड की मॉम ने भी सोचा, एडिसन के मॉम ने भी उसका साथ दिया था, तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ बनेंगे. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ साइंटिस्ट बनेंगे, उनको जो चाहिए वो लोग जरूर बनेंगे. बराबर के नहीं. तो देखते हैं आगे. देखो, बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. His mother brought him a book named Travels of Monarch 10. That book told him how the monarch butterflies migrate to Central America. देखो जब वो 2nd standard में था तो उसने 25 स्पीसीज, यानी सिर्फ 25 बटरफ्लाई नहीं, 25 अलग अलग स्पीसीज के, अलग अलग जाति के उसने क्या किए, बटरफ्लाइज कलेक्ट किए. और बाद में उसके मॉम ने उसके लिए एक बुक ला के दी जो उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी. वो बुक का नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. वो बुक के अंदर लिखा था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका में. सो एट द एंड ऑफ द बुक द रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च. और जब एंड मीन्स इट वॉज रिलेटेड विद द रिसर्च बुक, रिसर्च से रिलेटेड बुक थी. तो जब वो बुक के एंड में लिखा हुआ था कि तुम लोग जो भी बटरफ्लाई करते हो उसको टैग करो, यानी ऐसे कुछ लिख के रखो कि तुमने ये बटरफ्लाई की क्या इन्वेंट की. तो कहीं पे भी हो जाएगा तो वो पर्सन जो भी होगा, जिसको भी मिलेगा उसको पता चलेगा कि ये मोनार्क बटरफ्लाई है या दूसरा बटरफ्लाई है. तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वी हैव टू टैग द बटरफ्लाई वेन आफ्टर रिसर्च. फिर बाद में इट वॉज बीइंग डन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्बर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा. ये पहले कोई कर चुका था जिसने ये बुक लिखी थी. उसका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्बर्ट. वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे, टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे कनाडा में.
उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था कि आफ्टर द रिसर्च वी हैव टू टैग दैट बटरफ्लाई, पर्टिकुलर बटरफ्लाई। व्हाट वी हैव टू टैग, क्या टैग करने का कि वो कौन सी स्पीसीज का है, उसको हमने वो कितने ईयर या उसकी एज क्या है, जो भी रिलेट उसका इन्वेंशन होगा वो हमें उसके ऊपर टैग करना चाहिए। फिर जैसे इसने भी सीखा कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो कहाँ माइग्रेट करते हैं, सेंट्रल अमेरिका में। देन एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज। एब्राइट ने मीन्स रिचर्ड ने भी स्टार्ट कर दिया कि मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर उसने इन्वेंशन स्टार्ट किया और उनको जैसे जैसे वो रिसर्च करता था उसके ऊपर टैगिंग करता जाता था। सो एज इट वुड बी डिफिकल्ट चेसिंग देम ही स्टार्टेड ब्रीडिंग देम इन हिज बेसमेंट। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उनका मीन्स वी कैन से दैट उसने ब्रीडिंग ही स्टार्ट कर दिया कि उनको पता है कि हनी बीज होते हैं, उनको कैसे ब्रीडिंग किया जाता है, वो डोम बनाते हैं, उनको डोमेस्टिकली उनको पता है, उनको पाला जाता है। तो उसने भी बटरफ्लाई को पालना ही स्टार्ट कर दिया, उनकी ब्रीडिंग घर के अंदर बेसमेंट में स्टार्ट कर दी। वहीं पे उनका बटरफ्लाई का जन्म होता था। तुमको पता है लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा, ऐसे कुछ उसका लाइफ स्पैन होता है बटरफ्लाई का। तो उसने अपने घर में ही उसको स्टार्ट कर दिया बेसमेंट में। फिर when they become adults he would attack the butterfly's wings and let them go। और जब वो एडल्ट हो जाते थे कैटरपिलर से वो क्या बोलते हैं बटरफ्लाई बनते हैं, तो जब वो एडल्ट हो जाते थे वो उनको टैग करता था और उनको उड़ने देता था। देन when he was in 7th grade, जब वो 7th स्टैंडर्ड में था, he entered a county science fair and showed slides of frog tissues under a microscope। he didn't win a prize, so next he decided to do a real experiment। तुमको पता है स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है, हमारे स्कूल में भी हुआ था, बहुत ही ग्रैंड था वो। तो यहाँ पे भी जब वो 7th ग्रेड में था तो उनका एक एरिया में, काउंटी मीन्स एरिया, उनके एरिया में साइंस फेयर था, उसके अंदर रिचर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था और रिचर्ड ने उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर फ्रॉग्स के टिश्यूज को बताया, बट उसको प्राइज नहीं मिला। तो उसने सोचा कि ऐसा नहीं, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करता हूँ, प्राइज के लिए नहीं, उसके माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसको मज़ा नहीं आया, टिश्यू जो उसने फ्रॉग का माइक्रोस्कोप के अंदर सबको दिखाया उसको मज़ा नहीं आया, तो उसने सोचा कि कुछ रियल करते हैं। तो देखो क्या होता है, द नेक्स्ट ईयर ही डिड अ प्रोजेक्ट ऑन इंसेक्ट वर्क। नेक्स्ट ईयर उसने इंसेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट किया। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिसीज विच किल्ड ऑन मोनार्क कैटरपिलर्स। उसने क्या इन्वेंशन किया, देखो उसने ये रिसर्च किया जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, तो कि एक डिजीज होता है, जैसे अभी हमारे में कोरोना वायरल है, तो मोनार्क जो बटरफ्लाइज है उनमें एक वायरल डिसीज होता है जिसकी वजह से वो मोनार्क कैटरपिलर्स को काफ़ी सारे वो डिसीज की वजह से मर जाते हैं। तो क्यों, ये उसने इन्वेंट किया जब वो 8th स्टैंडर्ड में था। एंड ही थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। और उसको ऐसा लगा कि ये डिसीज को कैरी करने वाले कैरियर्स होते हैं, तुम लोग साइंस में पढ़ते हो कॉन्टेजिनियस डिसीज, नॉन कॉन्टेजिनियस डिसीज, तो इसमें वही है कि उसको इसने ये पता लगाया कि इन्वेंटेड दैट बीटल्स आर द कैरियर्स ऑफ दिस वायरल डिसीज इन मोनार्क बटरफ्लाइज। मोनार्क बटरफ्लाइज के अंदर जो डिसीज के कैरियर्स है वो कौन है, तो बीटल्स। उनको पता है बीटल्स हमेशा बटरफ्लाई के ऊपर बैठते रहते हैं, शायद उनकी लेग्स में कुछ वो वायरस के जो भी होंगे वो होते होंगे चिपके, जिसकी वजह से वो बटरफ्लाइज को मार देते हैं, कैटरपिलर को ही मार देते हैं, बटरफ्लाई तो बाद में बनता है, ये इसने इन्वेंट किया। सो ही रेज द कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। फिर उसने क्या किया, बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को मीन्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, उनको बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। बट ही वॉज अनेबल टू गेट एनी रियल रिजल्ट, बट द प्रोजेक्ट वॉज नो प्राइज। कुछ नहीं हुआ, वो जो वायरल डिसीज उसका एक वी कैन से दैट हाइपोथेसिस था कि बीटल्स की वजह से ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स है उनके अंदर ये डिसीज होता है। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया अपने ही बेसमेंट के अंदर, बीटल्स के साथ कैटरपिलर्स को भी रेज किया। जब उसने कैटरपिलर्स को रेज किया तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, जो डिसीज थे उसका उसको पता तो नहीं चला, बट उसको प्राइज मिला, वो उसने जो रियल एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से। एंड नाउ एब्राइट स्टार्टेड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क। फिर उसने अभी अपना स्टडी जो है उसको फर्दर दूसरी स्टेज पे कैरी आउट किया। उसने क्या किया, देखो एक प्रोजेक्ट किया कि वाइसरॉय बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है, ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ये मोनार्क कॉपी करते हैं। कॉपी मीन्स वो मोनार्क की तरह दिखते हैं, क्यों, उसका रीजन होगा कुछ, देखो वो रीजन भी दिया हुआ है, मैं पहले पैराग्राफ रीड कर लूँ। नाउ एब्राइट स्टार्टेड
to work on a project that Viceroy butterflies copied monarch. Their theory was that Viceroy butterflies could copy the monarch because birds don't like to eat monarchs. However, Ebright found that a starling would not eat ordinary bird food, but would love to eat all the monarchs it would get. This project got the first prize in the zoology division and got the third prize overall in the country science fair. अभी देखो उसने क्या इन्वेंशन शुरू किया कि ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ये किसको कॉपी करते हैं, मोनार्क, ताकि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो उसको कोई खाता नहीं है, बर्ड्स उसको पसंद नहीं करते। बट एक बर्ड है जिसका नाम है स्टारलिंग, ये ब्राउन और इसके ब्लैक स्पॉट होते हैं ये बर्ड के, उसको मोनार्क बटरफ्लाइज पसंद है। ये भी उसने इन्वेंट किया, वो खाता है, यानी वो जो स्टारलिंग है वो नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाता है, उसको ऐसे बटरफ्लाई वो भी स्पेशल खाना पसंद है, जिसकी वजह से उसको जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज मिला और थर्ड प्राइज जो है वो पूरे साइंस फेयर के अंदर मिला ये प्रोजेक्ट के थ्रू। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल, रिचर्ड बिगेन टू डू रिसर्च ऑफ एन अननोन हार्मोन इन द 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क बटरफ्लाइज। फिर उसने सेकेंड ईयर में और स्टेज अपनी एक्सपेरिमेंट की बढ़ाई, उसने रिसर्च शुरू किया कि कुछ अननोन हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स की वजह से 12 गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर होते हैं। देखो मैं बोलती हूँ, बटरफ्लाइज इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल, रिचर्ड बिगेन टू डू research of an unknown hormone in the 12 gold spots in monarch butterflies which were considered to be ornamental. In his senior year, he proved that the cells of the monarch pupa, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ऑर्नामेंटल मीन्स, देखो इसका मीनिंग मैं पहले बता दूँ कि रिचर्ड ने अपनी जब whenever he was in high school, so he increased his level of experiment, उसने लेवल बढ़ाई, उसके अंदर उसने एक हार्मोन, उसको एक अननोन हार्मोन था जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर 12 जितने गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, एंड दीज आर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, वो उनको डेकोरेट करते हैं यानी ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड इन हिज सीनियर ईयर he proved that the cells of the monarch pupa would develop into normal butterfly wings only if they were fed the hormone from the gold spots. This project won the first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won the third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Weather Reed Army Institute of Research. अभी देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि एंटमोलॉजी, इट इज वी कैन से दैट स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, एक सेकेंड, इंसेक्ट्स, आई थिंक एंटमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यस दिया हुआ है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसको एंटमोलॉजी बोलते हैं, जैसे जियोलॉजी तो स्टडी ऑफ अर्थ, वैसे एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो वो उसने जब ये प्रूव किया कि वो जो 12 एक हार्मोन है, अगर वो अपने वो बटरफ्लाई को देते हैं तो उसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर 12 गोल्डन स्पॉट्स आते हैं। जब वो बटरफ्लाई छोटा कैटरपिलर मोनार्क जब बड़ा होता है उसके विंग्स नॉर्मल होते हैं, बट अगर उसको ये हार्मोन दिया जाए तो उसके ऊपर ये गोल्डन स्पॉट्स आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट में, और उसका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसको एंट्री मिली, जिसके अंदर उसको थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी। फिर जिसकी वजह से समर सीजन में उसने शुरू किया एंटमोलॉजी लेबोरेटरी के ऊपर रिसर्च शुरू किया। वो कहाँ पे थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहाँ पे थी। एट हाई स्कूल जूनियर ही कंटिन्यूड हिज स्टडी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ऑन द मोनार्क बटरफ्लाई won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. फिर जब हाई स्कूल में वो जूनियर के तौर पे था तब उसने यही प्रोजेक्ट के ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी किया, फर्स्ट प्लेस उसको मिली वहाँ पे इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उसको दूसरा वर्क मिला कि वो आर्मी की लैब के साथ समर सीजन में काम कर सके। इन हिज सीनियर ईयर he grew cells from a monarch wings in a culture and showed that cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. He spent a summer after graduation doing further work at the army laboratory and the lab of US Department of Agriculture. फिर उसने ये प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के सामने दिखाया कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई जब रेज अप होते हैं तो वो नॉर्मल उनके विंग्स होते हैं, और उसको अगर ये गोल्डन स्पॉट वाला हार्मोन दिया जाए तो उनके ऊपर गोल्डन स्पॉट आते हैं। ये उसने लोगों के सामने दिखाया।
जिसकी वजह से उसको आर्मी लैब के साथ लैब ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी काम करने का चांस मिला। द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एट द लैब हेल्प्ड हिम to identify the chemical structure of the hormone. While studying the X-ray photographs of the hormone, he found yet another important thing about how a cell can read the blueprint of its DNA. The DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. फिर उसने sophisticated means those instruments which are needed for experiment, that is कल्चरल अपने उसको बोलेंगे कल्चरल इंस्ट्रूमेंट, उसको वो मिल गए लैब के अंदर, जिसकी वजह से उसने ये स्टडी किया, एक्सरे के फोटोग्राफ्स लिया हार्मोन के, और उसमें उसको ये पता चला कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर डीएनए की ब्लूप्रिंट होती है। तुमको पता है हमारे अंदर हम लोग जो भी, जैसे हमारा जो फेस होता है और हमारे जो क्वालिटीज़ होती है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती है बिकॉज ऑफ डीएनए होती है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारे सेल के अंदर हमारे एंसेस्टर्स की ब्लूप्रिंट होती है। मीन्स सपोज कोई बच्चे जो होते हैं, कोई दादा के ऊपर पड़ता है, कोई उनके दादा के ऊपर पड़ता है, कैसे? बिकॉज ऑफ दिस डीएनए ब्लूप्रिंट। तो उसने ये इन्वेंट किया, इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये सेल्स की ब्लूप्रिंट जो डीएनए के अंदर होती है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। और डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे मैंने तुमको बोला, वो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये उसने किसके ऊपर सोचा, किसके ऊपर रिसर्च किया? बटरफ्लाइज के ऊपर। उसने उसके बारे में उनका कैसे फॉर्म होता है, फंक्शन क्या होता है सेल्स का, वो उसने लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग drew pictures and constructed plastic models of molecules to show how it would happen. Then they wrote the paper explaining the theory. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors and second in his class of 1510. He then became a graduate student researcher at Harvard Medical School. If his DNA theory proves right, it would be a big step in understanding the process of life and preventing some types of cancer and other disease. देखो अभी क्या हुआ, एब्राइट और उसका एक कॉलेज रूममेट था जिसका नाम था जेम्स वॉन्ग। उन्होंने पिक्चर्स बनाए मॉलिक्यूल्स के। तुमको पता है साइंस में काफ़ी सारे, जैसे डायमंड का ऐसे स्नेक की तरह 6 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, मॉलिक्यूल्स का। तो उन्होंने ये जो सेल्स थे उसका पिक्चर्स बनाए, प्लास्टिक के मॉडल बनाए कि देखो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये थियरी में। ये थियरी की वजह से उसको ग्रेजुएट हुआ हार्वर्ड, और उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसको अच्छे मार्क्स भी मिले। सेकेंड क्लास आया, वो 1510 स्टूडेंट्स में थे, वो सेकेंड उसका नंबर था। वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गया। और कौन से कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। उसकी डीएनए थियरी अगर राइट होती तो ये बहुत ही अच्छी थियरी थी। इट वुड बी अ मिरेकल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द कैंसर एंड अदर डिसीजेस कैन बी क्योर्ड। कैंसर है या दूसरी बीमारी को कैसे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहा था। तो इस तरह से उसकी थियरी अगर राइट है, प्रूव हो जाती है, तो उसको काफ़ी सारे अमाउंट पे अपने कैंसर और अदर डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी वो प्रूव कर सकता था। Ebright has also been a champion debater, public speaker, a good canoeist, an all-round outdoors person, and expert photographer of nature and scientific exhibits. He was not only a scientist, but he is having other lot of qualities. देखो वो बहुत ही एक अच्छा चैंपियन था डिबेट करने के लिए। तुमको पता है डिबेट होती है ना, डिस्कशन आर्गूमेंट की जाती है, वो अच्छा एक डिबेटर था। स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, यानी वो स्पीच भी बहुत अच्छी तरह से दे सकता था। गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट है ना, वो कैनोई होता है बोटिंग जिसको तुम लोग बोलते हो, वो एक बेस्ट बोटिस्ट मीन्स कैनोइस्ट था। वो ऑल राउंड आउटडोर पर्सन यानी किसी भी तरह के पर्सन के साथ वो इजीली हैंडल कर सकता था। एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर, नेचर के फोटोज वो बहुत ही अच्छी तरह से लेता था। यानी उसकी ये सब क्वालिटीज़ दी है रेदर देन द साइंटिस्ट के अलावा। In school, he was a student and he also put in his energy towards the debating and Model United Nations Club. He admired his social study teacher and advisor Richard A. Wearer, who opened his mind to new ideas. अभी देखो जब वो स्कूल में था तो उसने डिबेट में पार्टिसिपेशन किया। फिर तुमको पता है यूनाइटेड नेशनल क्लब्स होते हैं, वो क्लब्स के अंदर देखो वहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेकेंड बता दूँ, हाँ, वो जो क्लब्स होते हैं वहाँ पे गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, उसके अंदर भी वो मास्टर था। और उसकी जो एसएस की टीचर थी
और रिचर्ड ए वेवरर वो उसके एडवाइज़र पे थे, उनकी उसने बहुत ही तारीफ की, उनको अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्हीं टीचर ने उसको नए नए आइडियाज़ दिए। लास्ट पैराग्राफ में दिया है देखो, रिचर्ड वॉज अ कॉम्पिटिटिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। His social studies teacher, Mr. Richard Weber, praised him a lot. Albright had all the qualities that make a true scientist. He was not interested in winning for a prize, but he wanted to do the best job he could. He had the traits of a scientist. First, he had a first-rate mind, curiosity, the will to win. He never lost his scientific curiosity. देखो सही है, साइंटिस्ट बनने की जो क्वालिटीज है वो रिचर्ड के अंदर थी। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, रिचर्ड जो था वो बचपन से ही कॉम्पिटिटिव था। उसके सोशल के जो टीचर थे मिस्टर रिचर्ड वेरर, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की क्योंकि बचपन से ही टीचर्स को पता चल जाता है कौन से बच्चे में कितना पोटेंशियल है। तो उसके जो टीचर थे रिचर्ड वेरर, उन्होंने उसका पोटेंशियल जो है वो पहचान लिया था, इसलिए वो एक उसके अंदर ऐसी इनबिल्ट क्वालिटीज़ थी जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। उसको सिर्फ प्राइज जीतने में मज़ा नहीं था, पर उसको जॉब, उसने जो भी काम किया है उसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए था। और उसने साइंटिस्ट बनने के जो भी क्वालिटीज़, ट्रेड्स यानी क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज चाहिए वो सारे क्वालिटीज उसके अंदर थे। आगे दिया हुआ है देखो, वो फर्स्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी, ऑलवेज उसकी जीतने की इच्छा होती थी, और इसीलिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो रिचर्ड एल्बर्ट में थी। और इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर का नाम ही यही था, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसलिए मैंने बोला कि हर एक इंसान जो भी बनता है उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर वो बनता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, थिंक अबाउट इट वो तुमको लिखने हैं, और थिंक अबाउट इट दो टाइप के हैं। तो पहले वाले जो है दो वो तुम लोग लिख दो, दूसरे वाले जो दो दिए हैं वो एक बार तुम लोग रीड कर लेना, तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि बोर्ड में कौन क्या पूछेगा, वी कांट बी डेफिनेट और श्योर अगेन अबाउट इट। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। ओके गाइज, बाय देन।